Good morning, students. We have in the last week completed our chapter Why Do We Fall In, and after that we have already finished the syllabus. But only the syllabus has finished, not the study, and that's why I want to give you some more interesting information or knowledge from the various topics. Today I have picked up the same topic which you just recently finished, that is the health and disease. आपने सिलेबस तो समाप्त हो गया हम लोगों का, लेकिन अभी पढ़ना बाकी है, पढ़ते ही रहना है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और कुछ बीमारी है जिसके फैक्ट्स, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने आपको एक अपने उससे चैप्टर के वीडियो में कोरोना वायरस से रिलेटेड बातें बहुत सारी बताई थी, और आज फिर कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में, और अगर समय मिला तो बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे डिटेल से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरस। वायरसेस फॉर्म ए ग्रुप ऑफ एजेंट्स दैट कैन लिव। आपने इसको पढ़ ही लिया है, जान ही लिया है कि दे आर एसेल्युलर, दे कैन नॉट एबल टू शो एनी living characteristic features unless until it will not reside in a host living cell। जब किसी लिविंग सेल में जब तक ये नहीं रहता है उस समय तक कि इसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर लिविंग का नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर रहता है तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, यानी कि रिप्रोड्यूस करता है लेकिन खुद से नहीं। जब वो किसी सेल में रहता है तो उसके मेटाबॉलिक सारे एक्टिविटी को कैप्चर कर लेता है, उसके मशीनरी को अपने लिए उसको यूज़ करता है, और तब जा कर के कहीं इसके प्रोसेस जो है मल्टीप्लिकेशन का होता है। इसमें प्रोटीन रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है। इन दोनों न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए में से कोई एक रहेगा, दोनों कभी नहीं रहता है इसमें। आइए अब बात करें पोलियोमाइलिटिस का। ये जो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, ये पहले कॉमन था, अब ये कॉमन नहीं रहा, अब तो ये फ्री, WHO ने तो मैंने पूरे साउथ एशिया को ही डिक्लेयर कर दिया है फ्री ऑफ पोलियो। अब उसके बाद कुछ केसेस, मगर फिर भी उसके बाद भी हुए हैं रिकॉर्ड। वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, कैपिटल सिटी दिल्ली से हुआ है। ये बहुत मैंने पहले की बात है, मैं समझता हूँ कि आज से 5, 7, 8 बरस पहले का ये जिक्र है। लेकिन आइए पहले हम लोग देखें इसका। पोलियोमाइलिटिस इज़ ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ ए पर्सन। अब इसके बाद देखिए इसका जो वायरस का नाम है वो यहाँ लिखा हुआ है पोलियो वायरस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द कॉजेटिव एजेंट। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? पोलियो वायरस ही इसका नाम है। ट्रांसमिशन का जो प्रोसीजर है, जो वे है, जो मीन्स है, वो क्या है? द वायरस इज ट्रांसमिटेड वाया फूड और वाटर कंटामिनेटेड द स्टूल ऑफ द पेशेंट। दिस इज वन important fact. Now look about some other aspects of this disease. Here is the important aspect of this disease is the pathogenicity. That means when it enter into the body, what will happen? What is its impact? What is its actions? It is here. After entering in the body, it reaches the intestine. As you well know that it is entered through the contamination of the, along with the contamination of the water and the food materials. That's why it may enter into the gut region. From here, it enters the central nervous system through circulatory system. From here means from the intestine. It enters where it will go. It will go to the nervous system through the circulatory system. From the intestine, it will with the help of the circulatory system move towards the central nervous system. Attacks motor nerve cells of the spinal cord responsible for muscle control. You have some idea, may I give you that the nervous system comprising the central nervous system comprising the two important parts, the brain and the spinal cord. All the stimulus, information, messages
are to be received by the brain through the spinal cord. All the information first it will be meet at the place of spinal cord, then it will dependent upon the situations or depending upon the responses, what type of responses, what type of stimulation, what kind of responses will be given by the body, it will may go to the brain or may sometime it will no go to the brain just after the job finished. That means the responses when over, then it will be informed to the, like in case of the reflex action. So here attacks motor nerve cells of the spinal cord. That is the part of the nerve that maybe the sensory nerve and the motor nerve. Sensory nerve may receive the message and send it to the spinal cord or the brain, and from the spinal cord when the messages are for the actions, when for the responses, the message will go through the motor nerve. It attacks the motor nerve. It finally leads to paralysis, especially in legs. ये तो आप जानते ही हैं कि पैरालिसिस लकवा जिसको कहते हैं मार देता है पैरों में, हाथों में, खास तौर से पैरों में इसका ज़्यादा दिखाई देता है. सोर थ्रोट, ये सिम्टम्स है कुछ. सोर थ्रोट एंड हेडेक आर द अर्ली सिम्टम्स. शुरुआत में अगर इसको देखा जाए, अगर बीमारी ने पकड़ रखा है शुरू में, तो ये दो चीज़ें दिखाई देगी, गले का खराश और सर का दर्द. उसके बाद फिर अगर ये परसिस्ट कर गया तो फिर लगातार बुखार, वोमिटिंग, मस्कुलर पेन एंड स्टिफनेस इन द नेक, पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं. प्रिवेंशन में ये है कि माने गुड हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशन रहना चाहिए, सैनिटरी कंडीशन ठीक रहना चाहिए, और उसके बाद जो है रेगुलर जो है फिजियोथेरेपी होते रहना चाहिए पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाना चाहिए, और जो ओरल पोलियो वैक्सीनेशन है इसका आपको शेड्यूल के अनुसार बच्चों को देना चाहिए और बच्चों को खिलाना चाहिए. तो ये था कुछ बातें जो पोलियो से रिलेटेड थी. The second important disease which also caused by virus is here the AIDS after the polio. The full form of AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is a fatal disease that affects the immune system of the body. And it was first detected in USA in June 1981, and since that time, since 1981, now it increasing continuously. Causative agent, retrovirus RNA virus, which is known as HIV. It is the name of the virus. Just like you have seen the case of the poliomyelitis, it is the name of the virus, that is the HIV, human immunodeficiency virus. Transmission, sexual mode of transmission. Here is the way of transmission: sexual contact, blood transfusion, infected needles and blades or razors, through placenta of an infected mother to a child. From the placenta also it will be from the infected mother. Pathogenicity here attacks lymphocytes. Actually you studied in the previous classes that in the tissue manifestations and the organ manifestations, that there are some diseases which may not manifested where it attacked, like in case of the this AIDS also, it may attack in the lymphocytes, that is the part of the lymph, and it is it is the part of the blood and it is the part of the tissue, but whether it is here it is the tissue, but it can, after attacking this part, it may destroy the immune system of the body. That means not the specific manifestation. There are different part or the organs of the body will be affected, and as the immune system will be not good after attacking of this, then the patient, the person who infected, may be prone to several infections. अब उसे कुछ भी होगा तुरंत उसको पकड़ लेगा. ये भी एड्स के कारण पेशेंट नहीं मरता इस बीमारी में, बल्कि इम्यून सिस्टम जो डिस्ट्रॉय हो जाता है वही उसके मौत का
कारण बनता है। तो यहाँ पे ये हमने देखा। अब इसके बाद कुछ और भी अदर एस्पेक्ट हम इस बीमारी का देखेंगे। Here some more facts about the disease, like the symptoms: swollen lymph nodes, decreased count of blood platelets, and if there is a decreasing of the blood platelets, it means there is a damage done to the clotting process, and if there is any simple injury at that time, there is a bleeding, and that will not stop in an easy manner. There is a loss of here look here, night sweats and loss of weight, रात में पसीना होना, बुखार आना, वज़न का कम हो जाना, है ना। ब्रेन के कुछ पार्ट्स का डैमेज टू ब्रेन, जिससे वो बात सही से नहीं कर सकेगा, हल्का के माने मेमोरी पावर भी उसमें कमज़ोर पड़ जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी जबकि डैमेज ब्रेन। अब ये देखिए, देयर इज़ ए नो ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, दैट्स वाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। ये तो आपने पढ़ा ही है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें यही पॉइंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके और किस तरह से उन लोगों को अवेयर किया जा सके। तो अवेयरनेस जो है सबसे पहला फैक्टर है, बेसिक चीज़ है। तो हम लोग एजुकेट करें, लोगों को बताएं उसे। दूसरी चीज़ जो है, अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ कॉमन रेजर्स, ब्लेड्स, निडल्स। तीसरा है अवॉइडिंग सेक्सुअल कंटेक्ट विथ अननोन पीपल। और चौथा है यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ ब्लड, जो डोनेट कर रहे हैं ब्लड, उनका HIV टेस्ट हो जाना चाहिए, है ना। और उसके बाद ये एक 1 दिसंबर इन ईच ईयर वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एड्स डे। हर 1 दिसंबर को, हर साल के 1 दिसंबर में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो ये था कुछ बातें। अब कुछ और चीज़ें भी हैं, एक और मैं बता रहा हूँ। जो आज मैंने ये क्लास सिर्फ इसलिए लिया है कि आप जो है स्टडी से जुड़े रहिए। और फिर अभी कुछ इसमें मैंने इस सारी चीज़ें बताई थी आपको, बट नॉट इन सच ए डिटेल मैनर। किसी भी डिजीज़ के बारे में उसका फुल जो है आप इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया है। अभी तो कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में मैंने बताया, इस तरह से आप बैक्टीरियल डिजीज़ का अगर आप लेंगे, सपोज़ कीजिए कि आपने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो फिर उसको इसी तरह से आप सारे जो पॉइंट्स दिए गए थे, है ना, वो सारे पॉइंट्स को आप मेंटेन करेंगे तो जा कर के एक माने आपको नॉलेज, एक माने सफिशिएंट नॉलेज मिल पाएगा किसी डिजीज़ के बारे में। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, किस तरह से हमारा शरीर अपने को बचाता है डिफरेंट बीमारी से, नेचुरली किस तरह से अरेंजमेंट हमारे बॉडी में है। देखिए, बॉडी इज़ बैटल अगेंस्ट जर्म्स। ये तो यू विल नो दैट वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द आवर डिफेंस सिस्टम that is based on the WBC. But here, not only that, white blood cells, that is the main basic things, no doubt, engulf and kill the germs. That is the phagocytosis. इससे पहले वाले क्लास में भी बताया गया था आपको। Produce antibodies which neutralize toxins produced by pathogens by producing the when they enter through the foreign bodies enter into the body along with the antigens, then against that antigen antibodies are produced that will may neutralize the toxins of the pathogens, protect from subsequent attacks. एक बार जब अटैक हो जाता है तो उसका वो आइडेंटिफाई कर लेता है हमारा वाइट ब्लड सेल्स में, और उसके बाद जो है फिर दोबारा अटैक होने से उसका और ज़्यादा ही अच्छा से हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर पाता है या वर्क कर पाता है। सैलिवा, देखिए, दिस इज द सैलिवरी ग्लैंड। देयर आर 3 pairs ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ रीजन that you may study this one in a detailed way in class 10th, but in a brief I may tell you that this salivary glands contains the salivary amylase, a type of enzyme that will act upon the carbohydrate type of food materials, and that's not only responsible for breaking the by biochemical actions of the enzyme, breaking down the food particles of the carbohydrate, but also that contain a type of enzyme that will
here may look antiseptic, act as antiseptic properties, contains also a type of enzyme that is the lysozyme, which destroy germs. This is very important within the body, how there is a good arrangement, a well system present that will defend us from the different type of diseases. Now come to the next part, that is the skin. Skin helps to keep out the germs, has oil glands which makes protective covering of protecting covering of the body. Skin has sweat glands, protective covering of body, which makes protective covering of body, entire body covered by the skin. Has sweat glands which secretes sweat and eliminates germs. पसीना निकलता है और उससे जो है जर्म्स मरते हैं। इस तरह से इसके बाद देखिए एक और देखिए स्टोमक, इसमें जो है गैस्ट्रिक एक ग्लैंड है, जिस ग्लैंड से जहाँ कई तरह की चीज़ें रिलीज़ होती हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, उसमें से एक HCl रिलीज़ होती है जो कि स्पेशली बैक्टीरिया को बर्बाद कर सकता है ना, दैट किल्स द जर्म्स बैक्टीरिया। तो इस तरह से आपने देखा, ये एक सच्चाई है जो हमारे शरीर में किस तरह से खुद को डिफेंड करने के लिए व्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद हमें जो है सतर्क रहना है और प्रिवेंटिव मेज़र जो है हमें अधिक से अधिक उठाना है। हम मेडिसिन पे या ट्रीटमेंट पे ना डिपेंड करके हम अपने सैनिटेशन व्यवस्था को अच्छा रखें, हेल्थ एंड हाइजीन उसके ऊपर निर्भर करता है। हाइजीनिक इन्वायरमेंट रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, क्राउडेड जगहों से, क्राउडेड स्थान से जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है उससे परहेज़ करें, उससे अवॉइड करें, लोगों को अवेयर करें, किस तरह से लोग को हम बता सकते हैं बीमारियों के बारे में और उससे बचने के रास्ते के बारे में उनसे बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए आज बताया कि ताकि आप, चूँकि आपने एक अच्छा सा टॉपिक, एक अच्छा सा चैप्टर आपने कंप्लीट किया है, वाई डू वी फॉल इन, हम लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, उसमें जानना है। उसमें हम उस टॉपिक को समाप्त करने के बाद उस चैप्टर को, आफ्टर फिनिशिंग दैट चैप्टर, वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट हाउ वी विल प्रिवेंट, नॉट हाउ वी विल कंसल्ट डॉक्टर एंड गो टू द डॉक्टर एंड टेक देयर एडवाइसेस, नो, हिज और हर एडवाइसेस, नो। इसमें है कि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, हमें बीमारी हो ही नहीं, हम क्यों बीमार पड़ते हैं। जब हमने ये जान लिया, सारी चीज़ें जान ली, बीमार होने के क्या क्या कारण हैं, तो हम उस कारण को ढूंढने के बाद हम उस पर एकदम माने ठीक से उसको देखेंगे सिस्टमेटिक वे में, तब हम बीमारी से बच सकते हैं। और इस तरह से हमने कुछ चीज़ें आपको आज बताई जो माने हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड थी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी कुछ और दूसरे टॉपिक से चीज़ें बताई जाएंगी।